Hello, dear friends. Today we are going to study about image formation by a convex mirror. Image formation by a convex mirror. In हिंदी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना. For a convex mirror, only two positions are important. Only two positions. For convex mirror, only two positions are important. Number one, when object is placed at infinity. Number two, when object is placed anywhere between infinity and pole. First condition, when object is placed at infinity. This condition shows in this figure. Object is placed infinity and this is the focus and this is a pole and M dash is a aperture of convex mirror. See center of curvature. Then figure is obtained AB. When the object is placed at infinity, the rays after reflection diverge in different directions and do not meet together. As a result, no real image is formed. However, the projected rays meet at virtual focus. This is the virtual focus of the mirror and form a point-sized, very small virtual image at virtual focus. This is a virtual focus A and B. This is a A and B. The image where imaginary erect diminished at the focus. Figure image is obtained imaginary erect diminished point sized very small virtual image at a virtual focus. This is the first condition when object is placed at infinity. Figure image is found imaginary, erect, diminished at the focus. And second position, when the object is placed anywhere infinity and pole. This condition, this is the object and this is focus and center of curvature. This is the pole of convex mirror and M dash is aperture of a convex mirror and AB is object and figure is obtained A dash B dash is a image when the object is placed anywhere between infinity
and pole. Infinity and pole. This is infinity, is the pole. A virtual erect image is formed when is smaller than the size of the object. Image is smaller than the size of object. This is an object and this is an image. Image size is smaller than the object, size of the object. उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम सीख रहे हैं यहाँ पर कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनना संभव है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ संभव हैं। उत्तल दर्पण में, इससे पहले आपने पढ़ा था अवतल दर्पण में, वहाँ पर 6 स्थितियाँ संभव हैं जो इमेज प्राप्त करने की, मगर उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ संभव हैं जिससे इमेज प्राप्त हो सकता है। पहली स्थिति क्या है? उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियाँ। पहली स्थिति जब इन्फिनिटी पर कोई वस्तु जब अनंत पर रखी हो। पहली स्थिति जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, जिस तरह से फिगर में ये दिखाया गया है, ये अनंत, इन्फिनिटी। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ये वर्चुअल फोकस, यानी कि आभासी फोकस जो है उस पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। तो जब पहली कंडीशन है जब अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और दूसरी स्थिति यह है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, यानी इन्फिनिटी और अनंत और ध्रुव के बीच, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, अनंत और ध्रुव के इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी एंड द पोल, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। तो 2 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने की। 2 स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति में जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका चित्र कहाँ पर प्राप्त होगा? इमेजिनरी, आभासी होगा, इरेक्ट सीधा होगा, डिमिनिश बहुत छोटा, बिंदु आकार का और छोटा होगा और फोकस पर बनेगा। दूसरी कंडीशन, when the object is placed anywhere, अगर अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कोई भी चीज, कोई वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट, आभासी होगा, सीधा होगा, जो है प्राप्त होगा चित्र, यानी कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और स्मॉलर, छोटा होगा, साइज में वस्तु के आकार से छोटा प्राप्त होगा। और ये चित्र यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा और वस्तु से, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। When the object is placed anywhere between infinity and pole, a virtual erect image is formed when it is smaller than the size of the object. This is condition for when the object is placed anywhere, infinity and pole, imaginary erect, diminished between
पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में हमें ये इमेज प्राप्त होगा। तो उत्तर दर्पण द्वारा दो स्थितियां संभव हैं जिससे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर हो। तो पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पर हमें इमेज प्राप्त होगा, यानी कैसा होगा, इमेजिनरी, आभासी, सीधा, बिंदु आकार का, छोटा होगा और फोकस पर, वर्चुअल फोकस, आभासी फोकस पर चित्र प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट अनंत और ध्रुव के बीच में होगा तो क्या कंडीशन होगी, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज, एक आभासी प्रतिबिंब और सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। थैंक यू।